Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा आत्माराम प्रभु हरे कृष्णा कुंदन पीयूष हरे कृष्णा शोनो हरे कृष्णा अंकित हरे कृष्णा रोहित हरे कृष्ण। आप लोग अपना परिचय दीजिए। रोहित, अंकित और सोनो बता दीजिए आप लोगों का। I am Rohit Kumar. I am Rohit Kumar, Civil Transport 7th semester from Sri Krishna Engineering College. Thank you, Rohit, for joining today Bhagavad Gita class. Ankit, please introduce yourself. सर मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं श्री गणेश्वरनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया का स्टूडेंट हूँ। ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। हरे कृष्ण। थैंक यू अंकित for joining. हरे कृष्ण। सुनो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर।
I am Sonu Kumar. I am studying Sri Krishnath Railway Engineering College. My branch is civil engineering. Very good. Thank you very much for joining. Hare Krishna. You all are welcome to this morning chanting and Bhagavad Gita discussion, and also your principal sir is every day also joining, is Atmaram Prabhu. I will also visit your college sometime in 11 or 12, 11th. I will meet you all. Thank you very much. So we'll start now. Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Aram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudire Tato Jayamudire. Jayamudire Nashtaprayesu Abhadresu Nastapayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavate Bhagavate Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistike Bhakti Bhakti Nastike Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namaste Namate Saraswate Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Hare Krishna Krishna Hare Paschatya Devasya Ahimsa Sanskritabhyo Kripa Sindhubhyo Yapa Patitanaha Muneभ्यो वैष्णवेभ्यो Krishna नमो Chaitanya नमः जय Prabhu श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Shri Gaura श्री अद्वैत Hare गदाधर Krishna Hare Krishna श्रीवासादि Krishna Krishna गौरभक्तो Hare हरे Hare कृष्णा Hare Rama Rama कृष्णा Hare कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, text number 36. आज शायद आत्माराम प्रभु पढ़ेंगे. आत्माराम प्रभु प्लीज. Hare Krishna Prabhu हरे कृष्ण. अवाच्यवादाश्च बहूनव अवाच्यवादांश्च बहुना दिश्यन्ति तवाहिता वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दनतस्त्व सामर्थ्य निन्दन्तस्तत्त्व सामर्थ्यम् ततो दुःखान्तरं नु किम्
ततो दुःखतरं नो किम्। Translation: Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Purport: Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna's uncalled for pleas for compassion, and he described his compassion as befitting the non-Aryans. Now, in so many words, he has proved his statements against Arjuna's so-called compassion. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. We'll discuss today. I think for Rohit, Ankit, and Sonu, this will be new, so we'll little bit summarize. हम लोग summarize कर देंगे थोड़ा. हम लोग भगवद गीता के द्वितीय सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रथम अध्याय में हम लोग पढ़े कि अर्जुन जो है विषाद योग में चले जाते हैं. विषाद योग मतलब विषादग्रस्त होकर भी वो योगा में है. हम लोग देखते हैं बड़े बड़े योगी कितना मेहनत करते हैं योगा करने के लिए. योगा का मतलब हम लोग एक्चुअली मिस इंटरप्रेट करते हैं. योगा जो है to connect ourselves with God, to connect ourselves with Paramatma, to connect ourselves with Krishna. That is yoga. हम लोग योगा सोचते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर देते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो वो योगा हो जाता है. उसमें योगा नहीं होता. योगा का मतलब है जो हम लोग देखते हैं बड़े बड़े योगी हिमालयन माउंटेन में बैठकर खाली शरीर में भगवान की ध्यान कर रहे हैं, अपने अंदर परमात्मा को ध्यान कर रहे हैं. तब भी उनके लिए कठिन होता है भगवान के साथ कनेक्शन करने के लिए. लेकिन अर्जुन जो है, क्योंकि भगवान उसके साथ खड़े थे, साथ ही है रथ पर, तो विषाद में जाकर भी वो योगा में. इसलिए पहला अध्याय को विषाद योग बताया गया है. विषाद में रहकर भी अर्जुन योगा में है, इज कनेक्टेड विथ कृष्ण. हम लोगों में से कितने लोग विषाद में रहकर कृष्ण के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है. विषाद में तो हम दूसरों को आरोप करते हैं और दूसरों को गाली गुलज करते हैं, अब भूल भी जाते हैं हम कौन है अपने आप. लेकिन अर्जुन विषाद में रहकर भी योगा कर रहे हैं, इज कनेक्टेड विथ कृष्ण. तो उस स्थिति में क्योंकि कृष्ण उनको विषाद में डाल रहे हैं, तो वो विषाद योग में है. और उसी स्थिति में वो युद्ध से पलायन करना चाहते थे, जैसे हम लोग सब भागना चाहते थे. अब लोग सब भागते हैं युद्ध से, जब सामने कोई मुसीबत आए तो भाग जाते हैं तुरंत ना. एक्चुअली हम लोग देखेंगे हमारे लाइफ में जितने मुसीबत आते हैं वो किसी दूसरों की वजह से नहीं आता है. हम लोग लेकिन दूसरों को दोषी ठहराते हैं ज्यादातर टाइम में हम लोग बोलते हैं इसके वजह से मेरे साथ ये हुआ, उसके वजह से मेरे साथ ये हुआ. ज्यादा टाइम हम लोग दूसरों को दोषी मानते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, और हम लोग सोचते हैं
कि हम अच्छे हैं, पर दूसरों के वजह से ही मुझे तकलीफ हो रहा है। एक्चुअली ये सही नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हमारे साथ आ रहा है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, ये प्रॉब्लम का जड़ हम ही है, और कोई है ही नहीं है संसार में। अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे कोई भी डिजीज हो, कोई भी कुछ भी हो, चाहे कोई दुख आए, कुछ भी हो, हम उसके ही जड़ है। इसलिए हमारे आचार्य लोग बताते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो दुख के समय हमेशा कृष्ण के शरण में रहते हैं, और हमेशा अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि हम ही दोषी हैं। जो भी मेरे साथ घट रहा है घटना, उसका दोषी मैं हूँ, मैं ही उसका कारण हूँ। लेकिन जब सुख का समय आता है तो वो भगवान को श्रेय देते हैं, बोलते हैं भगवान ही हमको इतना सुख प्रदान की। लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं, अभक्त होते हैं, जो संसार में हमेशा विषय भोग में लगे रहते हैं, अगर कभी दुख आया तो वो सोचते हैं कि दूसरे लोग ही जितने संसार में हैं वो मेरे दुख के कारण है। दूसरे जीवों को तो छोड़ो, भगवान को भी दोषी ठहराते हैं, बोलते हैं भगवान भी मेरे दुखों का कारण है। लेकिन और जब खुशी आता है तो हम लोग बोलते हैं कि हम इसके भागी हैं और हमको सारा श्रेय जाना चाहिए। भगवत गीता लेकिन उसका एकदम उल्टा अपोजिट बोलता है। हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे धीरे धीरे। कृष्ण बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हम लोगों को तब तक शांति की प्राप्ति नहीं होगा जब तक हम कृष्ण को सारे यज्ञों का, सारे कर्मों का, सारे कर्म फल का बेनिफिशियरी नहीं मानते हैं। He is the actual beneficiary of everything, और वो सारे जगत के मालिक है। जब तक ये नहीं मानते हैं हम लोग, और जब तक ये नहीं समझे हम लोग कि कृष्ण इज द बेस्ट वेल विशर, बेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसी में हूँ। मेरे हृदय में बैठकर कृष्ण इज द बेस्ट वेल विशर, मेरे साथ कभी नहीं छोड़े उन्होंने, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। चाहे इस शरीर में हो, चाहे कुत्ता के शरीर में हो, चाहे बिल्ली के शरीर में हो, हमेशा वो हर लिविंग एंटिटी, हर जीव के साथ रहते हैं, कभी किसी को छोड़े नहीं। एंड ही इज द बेस्ट वेल विशर ऑफ एवरीवन। जब तक ये हमको समझ में नहीं आया, तब तक हमको कभी शांति नहीं प्राप्ति होगी इस संसार में। ये कृष्ण खुद बोल रहे भगवत गीता। तो इसलिए हम लोगों को भगवत गीता रोज पढ़नी चाहिए, डेली अध्ययन करनी चाहिए, और जो ज्ञान है भगवत गीता को हमारे जीवन में उतारनी चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अर्जुन जब विषाद योग में चले गए, वो देखे अपने सामने, बाकी हम लोग सब डिस्कस किए थे, लेकिन ये सोनू, अंकित और रोहित के लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये लोग जब अर्जुन देखे अपने सामने भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने सारे भाई, कजिन ब्रदर्स और बहुत सारे सैन्य,
और ये युद्ध जो है महायुद्ध होने वाला है, जिसमें कितने लोगों का जान चली जाएगी। पहले तो आर्गुमेंट दिए कृष्ण को कि इतने लोगों का जान जाएगी, ये शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इतने लोग अगर मर जाएंगे, इनके सारे स्त्रियां विधवा हो जाएगी, और स्त्रियां को अगर प्रोटेक्शन नहीं मिला समाज में, तो ये लोग वर्ण संकर पैदा करेंगे, और वर्ण संकर से संसार में बड़ा उत्पात होगा समाज में। बड़ा सही लॉजिक दे, लेकिन कृष्ण बोले आप जो सोच रहे हो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ जो खड़े हैं इस युद्ध के लिए, ये है धर्म युद्ध। आप जो देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि किसी को मार सकते हो, किसी को आप मार नहीं सकते हो। हाँ? ना किसी को आप जन्म दे सकते हो, ना मार सकते हो। तो इसलिए आपका सोचने से कुछ नहीं होता है। जो धर्म की स्थापना के लिए जो करना है वो होगा ही। तो इसलिए फिर अर्जुन बोले आप ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन अब मेरे सामने खड़े हैं कौन? पितामह भीष्म, जो मेरे इतने आदरणीय, इतना स्नेह करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। और मेरे सामने खड़े हैं द्रोणाचार्य, जो मेरे गुरुदेव, कृपाचार्य, हमारे कुल गुरु। इतने इस समय पर मैं कैसे अपने गुरुजनों पर बाण चला सकता हूँ? इसलिए शास्त्र के हिसाब से ये बताया जाता है कि गुरुजनों के सामने भी बोलना ठीक नहीं होता है। गुरुजनों के सामने हम लोग जोर जोर से बोलना, जोर जोर से बात करना, ये शास्त्र का एगेंस्ट में है। अर्जुन वही बोल रहे कि इतने बड़े बड़े गुरुजन हैं मेरे सामने, और उनके सामने तो मुझे बोलने के लिए भी यह शास्त्र के मुताबिक नहीं है, और मैं इनके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूँ? हाँ? तो कृष्ण फिर बोले, समझा दिए उनको कि आप जो सोच रहे हैं, इनके शरीर जो है ये सब बुढ़ा हो चुके हैं। इवन ये शरीर अगर छोड़ेंगे तो इनको नया शरीर प्राप्त होगा। जो क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र में अपना शरीर त्याग देते हैं, उनको अच्छे देवता शरीर प्राप्त होता है। नहीं तो जो भगवान के सामने अगर प्राण कोई हराता है, तो उसको सीधे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, स्पिरिचुअल बॉडी। कृष्ण बोल रहे उसके लिए आप चिंता मत करो। ये जो है शरीर का जो ये बता रहे हैं, इसके लिए आप चिंता मत करो। आप ये सोचो कि अगर हमारा कोई भी, इवन हमारे गुरुजन भी कोई अधर्म के रास्ते पर है, उनको हम लोग धर्म पर लाना चाहिए, धर्म पर रास्ते पर। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग्स है। हम लोग देखे हैं इसके इंस्टेंसेस, जैसे प्रहलाद महाराज इतने 5 साल के बच्चे थे, छोटे बच्चे, लेकिन उनके पिताजी जो थे हिरण्यकशिपु, वो तो थे ही असुर प्रवृत्ति के बड़े अत्याचारी, बड़े भयानक राक्षस थे वो। और वो कभी भी विष्णु के, भगवान विष्णु को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकशिपु जब वर लेके आए ब्रह्मा जी से, वो ये घोषित कर दिए कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा किया जाए, सारे मंदिरों में मेरी अर्च विग्रह स्थापना करके मेरी पूजा किया जाए। और सारे देवता लोग उनको इतना डरते थे, वो जब भी बुलाते थे, अगर हिरण्यकशिपु बोलेगा रात को 12 बजे, बोलेगा सूर्य उदय हो जाए, तो सूर्य तुरंत दिखाई देते, प्रकाश देते थे। तो ऐसे कई नियमों का उल्लंघन किया उन्होंने, क्योंकि इतना पावरफुल वो बन गया था हिरण्यकशिपु। कई नियमों, सारे देवता उसके घर पे आके काम करते थे। हाँ,
तो इसलिए इतना पावरफुल हो गया था, वो सोच रहा था कि मैं ही भगवान। लेकिन उनको एक व्यक्ति चुनौती दे सकता था, वो था उनका बेटा उनका बेटा था प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे थे, लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे, किसी को भी नहीं डरते थे। इसलिए जो धर्म के रास्ते पर हैं, उनको कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो भगवान के शरणागत है, कृष्ण के शरणागत है, तो प्रहलाद महाराज हमेशा वो सोचते थे मैं कृष्ण की गोद में। तो हिरण्यकशिपु जब पहली बार जब प्रहलाद महाराज आए गुरुकुल से वापस, संडा अमर्क पढ़ा रहे थे उनको, तो उनको पूछे हिरण्यकशिपु, बोले कि आप क्या सीख के आए हो बताओ। तो हिरण्यकशिपु को बोले प्रहलाद महाराज कि मैं देख रहा हूं कि ये जो आप गृहस्थ आश्रम में हैं अभी, लेकिन गृहस्थ में है नहीं, आप गृहमेधी जैसे आचरण कर रहे हैं, और आपको जो है ये अंधकूप को छोड़कर वन में जाकर हरि कीर्तन करनी चाहिए। तो हिरण्यकशिपु सुनकर ही गुस्सा हो गया, बोला ऐसे हाँ, ये सब सिखाया कौन तुम? तुरंत संडा मर्क को बुलाया गया। हाँ, उनको बुला के जब बोल गाली गुलज हुआ, उनको खूब गाली दिया गया। बोले क्या वैसे शिक्षा देते हो मेरे बेटे को? वो लोग बेचारे काम पर रहे थे, बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं सीखा। लेकिन प्रहलाद महाराज जो व्यक्तित्व थे, 5 साल के आयु में भी इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े जो कि त्रिलोक विजेता था हिरण्यकशिपु, उसको चुनौती दे सकते, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर थे। तो अपने पिता को भी वो उपदेश देने लगते थे। तो इसलिए हम लोग सीख सकते हैं यहाँ से। कृष्ण भी वही चीज बता रहे हैं अर्जुन को कि आपको युद्ध करना है धर्म की स्थापना के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे फिर उनको आगे आगे समझा रहे हैं। हम लोग अभी आज के टॉपिक में आएंगे। आज का जो श्लोक था प्रभु जी पढ़े, उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि आप अगर भाग जाओगे अभी, बहुत कुछ समझाने के बाद, आत्मा सोल क्या होता है और सोल कैसे अपना शरीर परिवर्तन करता है, ये सारा चीज बताने के बाद फिर अर्जुन को बता रहे हैं, धीरे धीरे कर्म की तरफ जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है एक्चुअली टोटली समरी ऑफ और भगवद गीता है, चैप्टर 2। तो ये समराइज किया गया है इसमें सारा चीज। तो कृष्ण उनको सारा चीज यहाँ पे ब्रीफली बताएंगे, फिर चैप्टर 3 से इलाबोरेट करेंगे हर चीज को। यहाँ पे हर चीज, पहले सांख्य योग बताया, सांख्य फिलोसफी बताया, उसके बाद सांख्य में बताया कि हम कौन होते हैं, हम लोग कैसे शरीर चेंज करते हैं, हम ना आत्मा कोई मरता है, ना कोई मार सकता है उसको, ना कभी भी नष्ट होता है, कुछ नहीं होता है आत्मा। ये सब सिखाने के बाद फिर वो आगे बढ़ रहे हैं कर्म की तरफ, धीरे धीरे बताएंगे। तो इनको बहुत बता रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्म क्या होना चाहिए, क्षत्रिय का धर्म क्या होना चाहिए। और क्षत्रिय को अगर एक क्षत्रिय भाग जाता है युद्ध भूमि से, तो उसको कितना अपवाद होता है, उसको पाप होता है, उसको पाप लगता है। वो उसको सारे लोग भी बहुत कुछ गाली गुलज करते हैं, उसका इनफेमी होता है, फेमस, उसका फेम जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे बताने के बाद फिर उसको बता रहे हैं आज कि आप जो है अगर भाग जाते हो, आपके जो एनिमीज हैं वो आपको गाली देंगे, कोई आपको प्रशंसा नहीं करेगा। ना भीष्मदेव आपको प्रशंसा करेंगे, ना दुर्योधन। दुर्योधन तो ऐसे ही गाली देता था पहले भी हमेशा, लेकिन जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रशंसा, वो लोग भी प्रशंसा नहीं करेंगे,
ना भीष्मदेव आपका प्रशंसा करेंगे, ना द्रोणाचार्य आपका प्रशंसा करेंगे, ना कृपाचार्य आपका प्रशंसा, कोई भी प्रशंसा नहीं करेंगे। तो इसलिए आप प्रशंसा के योग्य नहीं रहेंगे, आपको सारे लोग गाली देंगे। तो इससे बढ़कर क्या और दुख हो सकता है? आपको जो सब लोग लाइक करते हैं, आप इतना बड़ा योद्धा है, और आप जब भाग जाएंगे इस यहाँ से, आपका कर्म छोड़ के, आपका धर्म छोड़ के, तो सारे लोग गाली देंगे। तो इसमें आप इससे इतना बड़ा दुख मिलेगा आपको, इससे तो अच्छा आप यहीं पे खड़े होके युद्ध कीजिए। तो हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे कैसे समझा रहे हैं कृष्ण उनको, फिर आगे आगे बताएंगे कैसे ब्रीफली बताएंगे कर्म के बारे में, कैसे कर्म करना चाहिए। फिर धीरे धीरे भक्ति के बारे में भी थोड़ा इसमें बताएंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे कैसे कृष्ण उनको समझा रहे हैं, फिर इलाबोरेटली 3rd चैप्टर में, फिर 4th चैप्टर में धीरे धीरे सब कुछ समझाने के बाद फिर फाइनली भक्ति योग के बारे में बताएंगे 12 चैप्टर से लेकर। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्जुन को जो शिक्षा यहाँ दे रहे हैं कृष्णा, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सारे ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ऑल ह्यूमन सोसाइटी के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग, सोनू, स्पेशली सोनू, अंकित एंड रोहित ज्वाइन टुडे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अभी हमारे आत्माराम प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्ण। आत्माराम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। यस प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो हमने पिछले क्लासों में देखा कि कर्म के बारे में बताया गया है कि जो भी जिसका कर्म है, जिसका जो भी कर्म है वो जो है धर्म के अनुसार करना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल है कि कोई सफाई वाला है, अगर वो अपना काम डेली नहीं करता है तो उसको कोई भी नहीं अच्छा कहेगा। कुछ दिन तो वो रहेगा, बट कुछ दिन के बाद कहेगा कि यहाँ कितना गंदगी है और ये साफ नहीं करता है, तो ये अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है। इसी प्रकार जितने भी हमारे कर्म है, जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो ठीक से सेवा नहीं दे रहा है, ठीक से रोगियों का इलाज नहीं कर रहा है, तो लोग उसका जो है बुराई करेंगे, कहेंगे कि ये डॉक्टर केवल नाम का है, काम कुछ कर नहीं रहा है। इसी प्रकार सारे प्रोफेशंस हैं जो आज के युग में है, जैसे टीचर है कोई, अगर वो पढ़ाता नहीं है और केवल जो है बच्चों को टाइम पास करता है, अगर पढ़ाता नहीं है, तो बच्चे कुछ दिन तक ही उसका इज्जत करेंगे। इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन का भी है कि अगर कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का काम है, मेन काम है पढ़ाई करना। अगर वो पढ़ाई नहीं करता है तो वो आगे चल के उसको बहुत दिक्कत होगा। 4 साल के बाद लोग पूछेंगे कि तुमने क्या पढ़ा? तो लोग उसका इज्जत नहीं करेंगे। इसी प्रकार जैसे आज हम कुछ कर्म करते हैं, तो कर्म को जो है अपना धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसी का कर्म का फल ही हर कोई भोगता है। जैसे आज चर्चा हुई कि ज़्यादातर हम दूसरों को दोष देते हैं कि उसके कारण मुझे ऐसा हो रहा है, वो उसके कारण मुझे ऐसा हो रहा है, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उसने मुझे पढ़ाया नहीं, उसने कुछ काम नहीं किया। तो वी आर ब्लेमिंग अदर्स ऑल द टाइम। जबकि होना क्या चाहिए कि हमने देखा है कई बार कि एक ही क्लास में सपोज कि 60 स्टूडेंट रहते हैं, उसमें 6 स्टूडेंट बहुत आगे बहुत अच्छा कर लेता है, बहुत अच्छा जॉब ले लेता है। टीचर्स आर सेम, कॉलेज आर सेम, लाइब्रेरी सेम फॉर एवरीवन, बट वो 6 लड़का बहुत अच्छा कर लेता है।
तो कहने का क्या मतलब है कि उसने अपना कर्म किया। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स वी शुड फोकस ऑन आवरसेल्फ, कि दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम जो डेली करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। अगर हम डेली 2 पेज कुछ लिखते हैं तो महीने के अंत में 60 पेज हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? उसी तरह लिखना पढ़ना या और भी एग्जाम्पल है, कोई भी काम अगर हम जब करेंगे तो उसी का फल हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखा गया है कि जब हम देखते हैं कि दूसरों को अपना दोष देते हैं कि उसके कारण मुझे दुख हो रहा है, दुख दूसरों के कारण नहीं होता है, बट अपना कर्म के कारण ही हमें दुख हो रहा है। हमने इस जीवन में क्या किया, और कुछ पूर्व जन्म का भी कर्म होता है। पूर्व जन्म का कर्म समझने के लिए एग्जाम्पल है कि अगर कोई बच्चा है जो कि अभी-अभी जस्ट जन्म लिया है, उसने कुछ कर्म नहीं किया है अभी, लेकिन वो जो जन्म लिया है वो किस परिवार में जन्म लिया, वो उसका पुराना जो कर्म है। कोई बहुत ही गरीब घर में जन्म ले लेता है, कोई बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है, कोई भक्ति वाले माहौल में जन्म लेता है, जिसके घर में पहले से ही भक्ति होता है। किसी के कोई ऐसे घर में जन्म लेता है कि जहाँ पे कोई भक्ति नहीं है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि हमारा कर्म इस जीवन का भी है और पुराना जीवन का भी है। तो पुराना जीवन का कर्म तो अब हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अभी का कर्म हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें आगे दुःख ना हो। तो इस तरह से कर्म के बारे में जोड़ते हुए यहाँ पे हमने पीछे क्लास में देखा कि अर्जुन जो है एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्म है कि क्षत्रिय मतलब दूसरों को रक्षा करना। तो क्षत्रिय का धर्म है कि दूसरों को रक्षा करना, और वो जब देखा कि मेरे ही परिवार के सारे लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो उसको वो भगवान को बताते हैं कि इन लोगों को मैं मार भी दूँगा, तो उसके बाद मैं किस पे राज करूँगा और किसको दिखाऊँगा? मतलब वो अपने धर्म से पीछे हटना चाहता है। जबकि उसका धर्म ये था कि जब भी लोग गलत करते हैं तो गलत को सजा देना, मतलब उसको महाभारत क्या है? महाभारत ये है कि जब भी हम दूसरों का हिस्सा लेना चाहते हैं, वहीं पर महाभारत है। ये हर जगह लागू है, जब भी हम दूसरों का हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे महाभारत है। और यहाँ पर जो है अर्जुन का ड्यूटी है कि वो बहुत से लोगों के पे जो अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ लड़ना और लोगों की रक्षा करना। जबकि वो अपने धर्म से भागना चाहता है, तो भगवान उसे समझाते हैं कि अगर कोई अपने धर्म से भागता है, तो लोग उसे कायर कहेंगे, कॉवर्ड कहेंगे। पीछे हमने देखा है श्लोक में। तो उसको कोई बहुत बड़ाई नहीं करेंगे, और जो नाम उसने अभी तक अपना बना रखा है, अर्जुन का नाम बहुत था, उसने अकेले ही विराट युद्ध में सभी योद्धाओं को हराया हुआ था। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर तुम अपना कर्म करके भागोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, लोग तुम्हें बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। तुम तो सोच रहे हो कि वो अपना भाई है, दादा है या ग्रैंड फादर है, मगर वो लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे कि तुम जो है अपना जीवन बचाने के लिए डर के भाग गया। इस तरह से ऐसा चीज़ सोचेंगे जिससे कि तुम्हारा छवि खराब होगा। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जिसका जो ड्यूटी है वो करना है। ये जो शरीर है, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाना है। शरीर धीरे-धीरे बढ़ता है, बच्चे धीरे-धीरे बढ़ते हैं, फिर जवान होते हैं, यौवन अवस्था आता है, फिर प्रौढ़ा अवस्था आता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा रहती है। पीछे हमने देखा, तो वही भगवान समझा रहे हैं कि जो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये लोग बूढ़े हो चुके हैं, इनका बॉडी वैसे भी खत्म होना है। मगर एक जो है धर्म की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध करना चाहिए, जो कि उसका ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो यही सब चीज़ें प्रभु जी हमने चर्चा किया कि अपना कर्म भगवान के दिए गए जो निर्देशानुसार है, जो भगवत गीता है, उनके अनुसार हमें अपना कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ब्यूटीफुल। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा कुंदन। थैंक यू सर। सर ने ऑलरेडी सारा कुछ एक्सप्लेन किया और आज सर ने बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग जो है इस जो है मटेरियल वर्ल्ड में किस तरह से है वो हम लोग करते हैं अपने जो भी हम लोग का जो फेलियर होता है उस हम लोग दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, जो है इवन हम लोग भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो एक नॉन डिवोटीज और जो है एसोसिएशन जो होता है रॉन्ग एसोसिएशन ये सब की वजह से आता है और उसे हम लोग को करेक्ट करना चाहिए। और आज के परपट में वो बात बताए हैं कि कैसे जो है आउट ऑफ कंपैशन जो है वो अर्जुन जो है वो जो उनका जो नॉन आर्यंस वाला जो क्वालिटी है वो शो करते हैं और एज ए आर्यंस जो बेसिक फॉलो करते हैं कृष्णा कॉन्शियस का, तो अगर वो जो है अगर करते हैं तो वो कभी भी जो माया है उस माया में वो नहीं आ पाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं जो अर्जुन होते हैं वो आउट ऑफ कंपैशन जो होते हैं फैमिली मेंबर के, जो उनका जो क्षत्रिय का जो वो होता है वो भूल जाते हैं और वो जो है वो अपने आउट ऑफ कंपैशन में आके जो अपने फैमिली के लिए जो जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो चीज जो भगवान है वो बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस फाइट को अगर आप नहीं करेंगे तो किस तरह से जो है जो अनकाइंड वर्ड्स हैं और जो निंदा करेंगे आपका जो एबिलिटी है उसका, तो आपके लिए पेनफुल क्या रहेगा, इस तरह से उनसे वो क्वेश्चन करते हैं। इसी पे श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से कमेंट से सारा कुछ एक्सप्लेन किया और सर ने भी अच्छे से सारा स्टेटमेंट देकर बताया है कि कैसे वो कंपैशन दिखाते हैं और उनको कैसे इससे निकलना है। ये चीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा कुंदन, थैंक यू, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा पीयूष। हरे कृष्णा सर। तो सर आज जो है पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने समराइज किया है सर ने कि शुरू से लेके अभी तक जितना भी जो है हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो है वो अर्जुन जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो विषादग्रस्त हो जाते हैं और विषाद योग में चले जाते हैं। और यहाँ पे जो है सर ने जो है योग का जो है करेक्ट मीनिंग भी बताया कि योगा का जो मीनिंग जो लोग अभी अभी के टाइम पे निकालते हैं वो सही नहीं है, बल्कि योग का मीनिंग होता है कि हम अपने आप को जो है किस तरह से कनेक्ट करें, टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद कृष्णा। तो ये जो है सर ने इसका मीनिंग बताया और साथ में जो है बहुत सारी चीज बताई, पूरी समराइज किया कि किस तरह से अर्जुन जो है वो तर्क देते हैं वैदिक शास्त्रों का कि अगर सभी के सभी यहाँ पे अगर जो है मृत्यु को प्राप्त होंगे तो किस तरह से आने वाली जो जनरेशन होगी वो कैसे जो है वो भटक जाएगी। और साथ ही साथ में अगर मैं अपने गुरुजन और इनको जो है अगर मैं मारूंगा तो जो है मुझे ही पाप लगेगा। और ऐसे जो है बहुत सारे जो है तर्क दिए थे अर्जुन ने, और उसका जो है भगवान ने जो है जवाब दिया था उनको कि बॉडी और सोल के बीच के जो है डिफरेंस और ये सब भी जो है हम लोगों ने देखा। और उसके बाद में जो है भगवान जो है वो कर्म के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं और सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हमने जो है कल के श्लोक के अंदर भी देखा था कि एक क्षत्रिय का जो है कर्म ही यही होता है कि वो जो है वो रक्षा करे और धर्म की जो है स्थापना करने में जो है वो सहयोग करे। मगर जो है अर्जुन जो है आउट ऑफ कंपैशन जो है वो ऐसा करने से जो है मना कर रहे थे। और कल भी जो है हम लोगों ने देखा कि प्रभुपाद जो है हम लोग को बता रहे थे कि कंपैशन किस तरह का होना चाहिए, बॉडीली कंसेप्ट प्लेटफॉर्म पे ना होके वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जो है होना चाहिए। और भगवान जो है वो बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो आप ये जो कर रहे हैं आउट ऑफ कंपैशन, आप युद्ध न लड़ने की जो बात कर रहे हैं वो उससे होगा कुछ भी नहीं, बल्कि जो सामने की जो सेना है, जो कौरव की जो सेना है, दुर्योधन की जो पार्टी है, वो लोग यही सोचेंगे कि आप जो है वो युद्ध में मृत्यु के जो है वो भय से जो है आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ फियर जो है आप युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। और वो लोग ये नहीं देखेंगे कि जो है आप आउट ऑफ कंपैशन से जो है वो इस तरह का सोच रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन को जो है अपना जो स्वधर्म है वो नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों ने जो है 1-2 क्लास पहले जो है स्वधर्म के बारे में भी जो है हम लोगों ने सीखा। तो हम लोग जो है यही देख पा रहे हैं सर कि किस तरह का जो है हम लोग को कर्म होना चाहिए ताकि आगे भी जो अगला जन्म जो हमको मिले वो एक अच्छा बॉडी जो है हमको मिले। और साथ ही साथ में जो है वो इस तरह का बॉडी मिले कि हम लोग जो है भक्ति के अंदर जो है वो ज़्यादा आगे जो है प्रोग्रेस कर सके। और इसके लिए जो है हम लोग को यही करना होगा कि जो भी भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको जो है हमें अपने जीवन के अंदर जो है उसको उतारने की जो है कोशिश प्रयास करना होगा। तो यही देखे सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा,
Thank you, Piyush. Beautiful. Hare Krishna, Sonu. If you want to speak something, Sonu Kumar. Hare Krishna, sir. हाँ रोहित, या कौन बोल रहा है? हाँ सोनू बोले, सोनू कुमार। सर हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर आज हम लोग धर्म और कर्म के बारे में सीखे हैं। जैसे हम लोग अभी स्टूडेंट हैं तो हम लोग का सर कर्म है पढ़ाई करना, अच्छे रास्ते पे चलना सर, किसी के साथ गलत नहीं करना। धर्म के बारे में सर सबको यही समझाना है या करना है कि सही रास्ते पे चले, पूजा पाठ करे, अपना भगवत गीता पढ़े, कुछ गलत किसी के साथ न करे, इससे अच्छा आपका कर्म होगा। Very good, son. हरे कृष्ण। Thank you, Hare Krishna. Thank you very much. Rohit, Hare Krishna. हरे कृष्णा सर। आज के सेशन में सर हम लोग मेनली मुख्य रूप से सर योग, कर्म और धर्म के बारे में सीखे थे, जिसमें योग के बारे में आज यही सीखे कि योग में सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं होता है, भगवान का जो भक्ति होता है वो भी एक योग में ही आता है, जो हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें उच्च सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। और सर कर्म में जब हम लोग सीखे हम अपने दुख और सुख का कारण हम खुद ही हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो। हम अपना जब हम खुश होते हैं तो उसका ब्लेम हम लोग अपने पे ले लेते हैं कि हम अपने कारण से खुशी हुए, और जब दुख हो जाते हैं तो हम दूसरे को ब्लेम दे देते हैं, उसके कारण मेरा ये काम नहीं हुआ या तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। मेरे लाइफ में जो भी कुछ होता है उसका सारा जिम्मेवार हम लोग खुद होते हैं, चाहे वो सुख हो या फिर दुख हो। और सर कर्म के बारे में ये भी, जब धर्म स्थल पे युद्ध स्थल पे जब थे अर्जुन जी और भगवान कृष्ण, तो वहां पे भी कर्म को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हम लोग हमारे सामने जो भी है सबसे पहले हमको धर्म को कर्म को देखना चाहिए, चाहे सामने जो भी हो हमको अपना कर्म जो है वो करना चाहिए। क्षत्रिय का जो कर्म होता है धर्म का रक्षा करना, और जो सही है उसे स्वचालित रूप से चलाने का, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, जिससे भी युद्ध करना पड़े, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं और अपना क्षत्रिय धर्म निभाएं। और सर धर्म का एक एग्जाम्पल अच्छा यहाँ पे भी मिला था, जैसे एक बाल अवस्था में ही प्रहलाद शिशु बहुत अच्छे मतलब स्वामी बन चुके थे, उनमें बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन उनके पिता जो कि काफी बड़े भी थे, और हिरण्यकश्यप जो कि वो सर मतलब उनके पास बहुत सारा ज्ञान होने के बावजूद भी वो एक अहंकारी थे और राक्षस ही कहलाए सब दिन। तो इसी में सर हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग को हमेशा धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए और हमेशा संयम में रहना चाहिए। हरे कृष्णा सर। Hare Krishna. Thank you, Rohit. Very beautiful. Thank you. Hare Krishna, Ankit. हरे कृष्ण सर। सर आज के क्लास से हमें मूलतः ये अपने कर्म के प्रति सजग होने का पाठ पढ़ाया गया। जैसे कि हम सर बोल सकते हैं कि हमें अपने कर्म का पूर्णतः निर्वहन करना चाहिए, चाहे हमारे सामने सर कोई भी हो, चाहे कोई हमारा फैमिली मेंबर ही हो, चाहे फिर कोई बाहरी ही हो, लेकिन हमें सबसे पहले अपना कर्म का निर्वहन करना चाहिए। और इसमें चाहे कोई भी हो, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अपने कर्म का निर्वहन करने में सर हमें भक्ति जो है बहुत बड़ा योगदान देती है। जैसे कि हमें किसी भी गलत रास्ते से भटकने से रोकती है, और हमें अपना कर्म का निर्वहन करने के लिए वो कहती है, एक तरह से बोल सकते हैं कि मिसगाइड होने से बचाती है। तो सर अगर हम अपना कर्म का सभी व्यक्ति अगर अपना कर्म का सही से निर्वहन करते हैं तो समाज में जो निगेटिविटी फैल रही है सर, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये हमें खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सब अपना कर्म सही से निर्वहन करते हैं तो सर। राधे। बहुत बढ़िया अंकित, थैंक यू, बहुत वेरी ब्यूटीफुल।
तो इसलिए कर्म सही है, सही कर्म करने के लिए हम लोगों को भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति से हम लोगों को ज्ञान प्राप्ति होती है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, भगवत गीता में भी है। तो भक्ति से हम लोगों को ज्ञान प्राप्ति होती है कि कैसे कैसे कर्म करनी चाहिए, कैसे कर्म नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ऑटोमेटिकली ही गिव्स अस नॉलेज। तो सब लोग बहुत अच्छे पार्टिसिपेट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।